Still in college and barely 23 years, but was already thinking dangerous thoughts in. One evening in June 1987, while Riaz was having dinner with his parents, he tried to overcome their apprehension. He knew that he was going to ask them what would immediately be refused, as it was possible for them to allow him to go to Afghanistan. From the mountains of Kashmir to the deserts of Arabia, there's a man who did remarkably well with carpets, and he calls himself now the Jeep legend. Let's meet रियाज भट्ट। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी वेल। तो आज हमने अपने दोस्तों को, अपने नाज़रीन को ये बोला कि कैसे रियाज ने अपनी ज़िंदगी का सफ़र जो है, एटलीस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 1987, जब पूरी दुनिया जो है उनकी नज़रें उस रीजन पे थी जहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता था, और आपने स्टार्ट किया। उसके बाद आपका जो रिसेंटली यहाँ पे जीप लेजेंड के नाम से यहाँ पे अब बज़ हो रहा है, तो उस पर भी हम बात करते हैं इंशाल्लाह। चलिए। I have brought this very special hat. ये मेरी one of the favorite hat है। So you have to wear it while we will drive. Nice. So you have to wear it so that we will look similar like brothers. Yes. While we will drive the car, Jeep, and enjoy the drive. Let me quickly tell first a little story about this hat. This hat belonged to one very famous cowboy of Houston, Texas. And this hat is 45 years old. Okay. और वो बहुत ही famous cowboy था. He was running a ranch. Riaz, besides getting into rugs and crafts of these areas, he also developed an interest to study these rugs, to study these motifs, to study the designs. And he was invited as the guest faculty in some of the reputed universities in the US, where he teaches designs, where he teach them how these rugs are made and all. And आज रियाज जो है रग मैन ऑफ दोहा के नाम से भी जाने जाते हैं, and Riaz has been featured by most of the reputed organizations like CNN, BBC. This is what drew Riaz Bhatt to Afghanistan for the first time back in 1988. That was really one of the most dangerous adventure one can even imagine. Going to Afghanistan in 1988 March, when Russia is occupied almost 70% of the land and there is fierce war out on the ground. हम एक जर्नी पे स्टार्ट करते हैं और आपकी कहानी को भी जानते हैं, और क्या क्या आपके इंटरेस्ट है उनको भी जानते हैं। राइट। 1987 में तो मैंने निकला हूँ यहाँ से, लेकिन कहानी स्टार्ट हुई तकरीबन उससे 5 साल पहले, जब मैं अभी स्कूल में ही था। मेरे अंकल यहाँ थे जो पाकिस्तानी नेशनल थे, और यहाँ आते रहते थे। मेरे मामू, जो मेरे सबसे बड़े मामू थे, वही मेरे टीचर रहे हैं, मेरे मेंटोर रहे हैं, और उन्होंने मुझे बेसिक नॉलेज जो थी वो कार्पेट्स की भी दी थी। तो उनका शोरूम था काठी दरवाज़ा में, एंड इट वाज कॉल्ड अमान कारपेट्स। अच्छा। तो मैं वहाँ स्कूल में होता था, लेकिन मैं वहाँ रहता था, उनके पास ही रहता था, मामू के पास। तो उनके जो कस्टमर्स आते थे जनरली, वो तो सारा कश्मीरी जो होता है ना, क्या नाम है इसका, कश्मीरी कारपेट्स, उसका जो बिजनेस करते थे। So right now we are in Pari Mahal. Pari Mahal is a historical. It's a place which comes under Archaeological Survey of India. This place has been built in 17th century by Dara Shikoh, son of Shah Jahan. तो यहाँ पे जो है आज रियाज और इसकी कहानी। रियाज, you are very amazed to see this place. Absolutely, because interestingly you are here for the first time. It's very surprising because when I have left Kashmir, I was very young. I was only 21 years old, 1987. So तब भी मौका नहीं मिला था मुझे यहाँ आने का इस पार्क में, तो आज मैं पहली दफ़ा यहाँ आया हूँ। So I'm really amazed looking at this wonderful structure.
Absolutely beautiful. It's my first time visiting Pari Mahal. Can you believe it? I've never been here. MashaAllah. Absolutely stunning, yaar. Wow. क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त. And then the view from here to my loving city Srinagar. और ये really breathtaking for me. Truly breathtaking for me. It's absolutely stunning. So that is that area where you see these small plants coming up. जी. So that is tulip garden, okay? Right. तो tulip garden से होके आप यहाँ पे पहुँचते हो. ये जो है ये एरिया. So this is golf course, Royal Spring Golf Course. I used to be here. मैं that is चार चिनारी. जी, क्या बात है. वो दरगाह है आपका. जबरदस्त. Absolutely. मुझे तो वुंड कदल भी नजर आ रहा है. बिल्कुल जो बीच में इसको जो है ना ये कनेक्ट करता है रैनावारी इलाके को सारा. सो दिस इज, मैं यहाँ से बचपन में आता था, मतलब इन माय स्कूल एज हम रैनावारी से, बिकॉज आई एम ओरिजिनली फ्रॉम रैनावारी. आई विल लिव इन जुकरा नाउ. मैं रैनावारी में पैदा हुआ हूँ. तो वहाँ से हम जाते थे संडे को अर्ली मॉर्निंग साइकिल्स या इवन पैदल. ये जो इसको हम सुथ बोलते हैं, सुथ से हम चलते थे. 7 पुल है इसको, आई थिंक 7 ब्रिजेस हमें क्रॉस करने थे रैनावारी से, और हम निशात पहुंच जाते थे, निशात गार्डन. आप कह रहे थे कि जब 1987 में आपने डिसाइड किया कि आपको अफगानिस्तान जाना है. जी. तो बात क्या, मतलब क्या हो? एक्चुअली मैंने कहा ना, वो कहानी पहले से शुरू हुई थी. 1984 में मेरे मामू पाकिस्तान से आए थे यहाँ, बीइंग एज अ पाकिस्तानी नेशनल, क्योंकि वो वहीं थे सेटल काफ़ी अरसे से, ऑलमोस्ट सिंस फ्राम ये जो है ना पार्टीशन. वो यंग गए थे वहाँ, सेटल हुए थे वहाँ. लेकिन बीइंग कश्मीरी उनकी सारी फैमिली यहीं थी. उनके 4 भाई यहाँ थे, बहनें यहाँ थे, माँ बाप यहाँ थे. तो एंड देन ही केम बैक, मैरिड थे, मतलब बच्चे थे. तो ही केम बैक टू कश्मीर टू गेट सेटल्ड. Because being as Pakistani national to get settled back in India, it would be extremely difficult. Even though उस वक्त हालात यहाँ बहुत ठीक थे, हालात सब कुछ क्लियर था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. अर्ली 79 की मैं बात कर रहा हूँ. तो इंडिया पाकिस्तान के हालात भी अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक थे तब. तो वो आए, उन्होंने यहाँ कोर्ट में केस डाला फॉर द रेजिडेंट्स जो वापस लेना चाहते थे. तो वो केस तकरीबन 5-6 साल चला यहाँ कोर्ट में. बट अनफॉर्चुनेटली वो केस वो हार गए. बट वो 6 साल यहाँ रहे. उन 6 साल में उन्होंने यहाँ शोरूम खोला था, चूँकि हमारा कारपेट बिजनेस था ऑलरेडी, जो वीविंग वगैरह का था हमारा मैन्युफैक्चरिंग. तो उन्होंने कारपेट बिजनेस यहाँ खोला, शोरूम काठी दरवाज़े में खोला. आई वाज इन ग्रेड 9. तो मैं बहुत इंस्पायर था ऑलरेडी कारपेट्स वगैरह उसके साथ, उनकी स्टोरियाँ, डिज़ाइंस, हिस्ट्री, उसका मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था टू लर्न अबाउट इट. कश्मीरी यहाँ पे हमारा जो हमारी कश्मीर कारपेट इंडस्ट्री, दैट वाज इट्स न्यू. इसकी कोई इतनी लॉन्ग हिस्ट्री नहीं है. इट इज़ बीन हियर फ्राम लाइक पास्ट सिंस फ्राम जो है ना शाह हमदान यहाँ आए थे, और ज़ैनुल आबिदीन ने ये इंडस्ट्री यहाँ डेवलप की थी. तो इतनी पुरानी हिस्ट्री नहीं थी. लेकिन मैं इसकी जो कारपेट्स की जो ओरिजिनल हिस्ट्री थी, कारपेट कहाँ से पैदा हुआ था, किस तरह पैदा हुआ था, व्हेन वाज द फर्स्ट कारपेट मेड इन द इन द हिस्ट्री, तो उसको मैं पढ़ता था, बुक्स लेता था, उनको पढ़ता था. तो मुझे ये जो उसकी जो इंस्पिरेशन मुझे हुई कि दुनिया में पहला कालीन किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया, वो पढ़ते पढ़ते मैं इतना डीप हुआ कि इट लीडेड मी टू सेंट्रल एशिया. क्योंकि इसमें कोई एविडेंस नहीं है कि दुनिया का पहला कालीन कहाँ बना है, लेकिन इतनी स्टोरीज़ है कि इट हैज़ बीन मेड ऑलमोस्ट 7000 ईयर्स बिफोर. 7000 साल पहले दुनिया का पहला कालीन बना होगा. और जो कालीन नहीं था उस वक्त, वो नमदा था, फेल्ट. दिस इज़ द बेसिक ऑफ हैंडमेड कारपेट इज़ कॉल्ड फेल्ट, जिसको हम यहाँ नमदा बोलते हैं. उसके बाद इंसान जो वो लोग थे जिन्होंने ये किया था, वो नोमैड्स थे. क्योंकि नोमैड्स के थ्रू ही मोस्ट ऑफ द स्टफ, मोस्ट ऑफ द आर्ट शुरू हुआ है. लेकिन नोमैड्स जो है, इट बिलोंग्स टू द वुमन, सेंट्रल एशियन वुमन, और द बेस्ट डिज़ाइनर्स इन दिस वर्ल्ड, कारपेट वर्ल्ड, आर द वुमन. And there's a reason behind why they are the best designers. And besides being nomads, they are very independent. First of all, uneducated and illiterate.
डिज़ाइनिंग कैसे स्टार्ट हुए हैं, बिकॉज दीज पीपल आर मेड बाय नेचर, और नेचर ने उनको ये सलाहियत दी है कि वो ये एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, फ्लावर से उठाते हैं डिज़ाइन, किसी भी शेप से, नेचुरल सेटिंग्स है। लेकिन वही औरत ये काम करती है जो खुद ऊन निकालती है शीप से। I was also studying कि जब अफगानिस्तान में सोवियत ये वॉर चल रहा था, तो उसमें क्या बहुत सारे ऐसे कारपेट्स आए जिसमें वॉर मोटिव्स थे। इट्स कॉल्ड वॉर कारपेट्स। वॉर कारपेट्स, एग्जैक्टली, थ्रेड्स ऑफ वॉर। थ्रेड्स ऑफ वॉर, या एब्सोल्युटली। वो मैंने बहुत बेचे हैं, मैंने बहुत कलेक्ट किए हैं। ओरिजिनल जो वो बने थे ना अर्ली 80s में, तो वो मैंने उस वक्त से मैंने वो मतलब ना कलेक्ट किया। पहला जो वॉर रग बना था, इट वाज एक्चुअली एन इम्प्रेशन, बैड इम्प्रेशन ऑफ द सोवियत एमुनेशन यूज्ड ऑन द अफगानी पीपल। क्योंकि उससे पहले अफगानी लोगों ने इतना हेवी सोफिस्टिकेटेड एंड मॉडर्न वॉरफेयर नहीं देखा था। और ये जब अफगानिस्तान पे हमला हुआ, मतलब रशिया ने ऑक्यूपाई किया, और सबसे पहले कौन हिट हुआ था? दे वर द नोमैड्स। क्योंकि अफगानिस्तान, ये नोमैड जो है, ये नॉर्थ ऑफ अफगानिस्तान, पूरे नॉर्थ के हिंदू कुश माउंटेन जो है उसमें रहते हैं, ईरान के बॉर्डर पे, एज वेल एज तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर पे। बिकॉज she knew she will make the carpet, she will use it in her tent, but at one day this carpet will go out from Afghanistan, and people will see this carpet, and she wanted to send a message to the world what Russia has used, the ammunition, what kind of warfare Russia has used on the unarmed and innocent people, nomad people of Afghanistan. In fact, I think we had this conversation long back, exactly, few years back, and you told me कि किसी भी नोमैड औरत के लिए जो सबसे बड़ा गिफ्ट जो होता है, जो अपनी ये बेटी को वो देगी, वो ये कारपेट होता है। ये तो बहुत जगह होता होगा ना? जी, बहुत जगह। यहाँ पे 20 बंदों ने फोटो। वेरी नाइस, वेरी गुड, चलो शुक्रिया, वेलकम जी। चलिए नियरवा। ज़्यादा म्यूजिक नहीं सुनता हूँ, पहले वेस्टर्न ही सुनता था। मैंने पहली दफ़ा अपने श्रीनगर में ऐसी खूबसूरती देखी है जो यकीनन ब्रेथ टेकिंग है। अल्लाह ताला की कुदरत यहाँ सामने नज़र आती है। इस वंडरफुल जर्नी में एक मेरा स्पेशल पार्ट रहा है, जो ये जीप ड्राइव है ज़बरवन की चोटियों के अंदर, डीप इनसाइड। तो ये थी कहानी रियाज भट्ट जो है बहुत सारी ऐसी एडवेंचर्स में है, और जो भी शोबे, जो भी इनके एस्पेक्ट्स हैं, उनको जानने के लिए बहुत टाइम चाहिए। और रियाज, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके, और आपकी कारपेट की नॉलेज, आपका कारपेट का एक्सपीरियंस, फिर आपका अफगानिस्तान में और ट्राइबल एरियाज का सफ़र होना, जी, वहाँ पे वो रग्स को, डिज़ाइन को सीखना, और उसके बाद आपका जीप यहाँ पे। जी। So how you created this whole vibe? So there are some inspiring stories that we bring out to the public. तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हमें अपना कीमती वक्त दे दिया। Thank you so much. First of all, I'm very thankful to you because you are really a good inspiration for me as well. तो सबसे पहले आपका शुक्रिया, और then जो आपका जो चैनल है, what's it called? आवाज़ द वॉइस, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक
मेरे लिए भी एक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है जब मैं बात करता हूँ, लोगों तक वो मैसेजेस पहुँच जाती हैं, लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को इसमें से इंस्पिरेशन मिलती है। बिल्कुल। तो क्योंकि आप किसी की लाइफ को सुनते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं और कुछ ना कुछ आपको सीखने में और मिलता ऐसा भी है कि इस जब स्ट्रेस आपका इतना बड़ा है, जी जी, जब आपका यहाँ पे हर एक चीज में लोग उलझे हुए हैं, जी जी, तब आप कैसे टाइम निकालते हैं? एब्सोल्युटली। देखिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है, ठीक है, इसको अगर आप दुखों में ही गुजारेंगे और उसको गमों में गुजारेंगे तो ज़िंदगी का पता भी नहीं चलता है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। दुख तो हर एक की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन फ़न तो यह है कि उन दुखों के बीच में से अपने लिए अपना थोड़ा टाइम निकालना है, अपने आप से मोहब्बत करना है और उस टाइम को अपने तरीके से यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। मेहनत अपनी जगह है, काम अपनी जगह है, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना है। और तो जो मैं यहाँ आता हूँ, ये जो 1-2 महीने मेरे होते हैं साल में, पूरा साल काम करता हूँ, स्ट्रेस बस्टर होता है। तो ये मेरा एग्जैक्टली स्ट्रेस बस्टर होता है, इससे मुझे काफ़ी रिलैक्सेशन मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो और अब मैं आज इनफैक्ट हमें भी बहुत सफ़र कराया और बहुत अच्छी जगह यहाँ पे हमने, जी जी, इट वाज अ रियली गुड एडवेंचर फॉर ऑल ऑफ अस, एब्सोल्युटली सेम हियर, द होल टीम। और आज जो आपने जिक्र किया रबाब का, तो मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बताना चाहता हूँ कि दैट रबाब हैड अ वेरी ग्रेट स्टोरी, हाउ आई स्टार्टेड गेटिंग इन टच विद समवन इन अफगानिस्तान। फिर किसी ने कहा कि वहाँ अगर कोई जाएगा, और फिर वो रबाब कैसे आपने वहाँ से उठा के, जी जी, आपने उसको मैंने पाकिस्तान आया, पाकिस्तान से वो कतर आया, हाँ, कतर, पाकिस्तान से कतर मेरे कज़न ने अपने कंधे पे लाया, जो मेरे साथ काम करता है दोहा में मेरे शोरूम पे, और फिर दोहा से जब मैं यहाँ आया तो मैंने अपने कंधे पे वो लाया, और आपको वो मुझे याद है। थैंक यू, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।